سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سرطان، سٹار ہے کینسر والوں کے لیے مئی 2025 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں جو ہوراسکوپ بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، یعنی کاروبار پر جادو ہوگا، کاروبار میں نے بتایا اچھا چلے گا پر نہیں چلے گا۔ رشتوں کی بندش کا جادو ہوا تو اگر میں نے بتایا رشتہ ہوگا تو نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جادو کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ کے ہر معاملات کے اندر ناکامی ہو۔ سٹارز کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جادو، بلکہ ستاروں پر بھی بندش لگا دیتا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کا صدقہ جو ہے ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے کچھ کامن باتوں کا ذکر کر دوں اور جو عام باتیں آپ کے اس مہینے کے اندر ہوں گی۔ جو مین باتیں ہیں ان کے اندر تعلقات میں ہم آہنگی آئے گی، ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ چیز اچھی ثابت ہوگی۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور سے آپ کا ذہنی دباؤ کافی کم ہوگا اور اس کا آپ کو موقع بھی ملے گا۔ اس مہینے محبت کے تعلقات میں گہری سمجھ بوجھ آئے گی آپ کو۔ کسی بھی ایک عزیز کے ساتھ تعلقات میں خوشی کا احساس ہوگا۔ وہ کوئی پرانا عزیز ایسا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو چکے ہوں۔ آپ کو اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ عام آپ کے سٹار کے ساتھ منسلک ہوں گی اس مہینے کے اندر۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے۔ میں آپ کو منتھلی بتا رہا ہوں مگر اس کی ڈے بائی ڈے جو معلومات ہے وہ آپ کو ڈیلی ویڈیو میں ملتی جائے گی۔ آپ کو جو میرے چینل پر روزانہ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے وہ لازمی دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر جو میں پڑھائی بتاتا ہوں وہ آپ کے کاروبار اور زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اور کامیابی اور ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی دن بہ دن آپ کو ترقی ملتی جائے گی۔ تو کاروبار کے معاملات اس مہینے کے اندر آپ کے ڈاواڈول ہوں گے، مثلا کبھی اچھے ہوں گے کبھی برے ہوں گے، تو اسی لیے آپ کو کہا ہے کہ ڈے بائی ڈے کے حساب سے ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اوورآل آپ کو جو ہے اس مہینے کے اندر پروفٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اور نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ جو ہے کچھ دن ایسے آئیں گے، ویسے تو زیادہ تر لوگوں کے لیے ٹھیک رہے گا، مگر کچھ دن ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ کبھی لڑائی جھگڑا آئے گا بیچ میں، ٹھیک ہے، 1-2 دن ایسا بھی آئے گا جس کے اندر ایسا لڑائی جھگڑا آئے گا کہ جس کے اندر آپ کی نوکری جانے کے چانسز بھی ہوں گے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈیلی ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ اوورآل تو زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے نوکری کے لحاظ سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرکاری نوکری والوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ میں ڈیلی ویڈیو میں نہیں بتاتا۔ سرکاری نوکری والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ضرورت سے زیادہ برڈن والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لاپرواہی آپ کو نقصان دے گی، صاف بتا رہا ہوں۔ آپ کے محکمے کے اندر رشوت بہت زیادہ چلتی ہے، رشوت لینے دینے میں احتیاط کیجیے گا ورنہ کسی بھی وقت پکڑے جا سکتے ہیں اور نوکری بھی جا سکتی ہے آپ کی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ یہ میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ شراکت میں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا سٹار جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائے گا، اس کے حالات کچھ اور ہوں گے۔ اگر آپ اکیلے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے کوئی قرض لینا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کر دینا چاہیے، آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا اپروو ہو جائے گا اور آپ کو ضرور ملے گا جی، ٹھیک ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کو اپنے پیپر جمع کروانے چاہیے۔ جن لوگوں کے جلدی ویزا پروسیس ہو جاتے ہیں جیسے کوئی دبئی وغیرہ کا، ان کا تو جلدی ہو جائے گا۔ جن کا ٹائم لگتا ہے ان کا بھی رکاوٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور ان کا یہ مہینہ جو ہے پیپر جمع کروائے ہوئے اس مہینے کے اندر، اگر مہینے کا ٹائم سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اگلے مہینے میں جا کر ان کے اپروو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مین چیز ہوتی ہے شروعات کرنا، شروعات کرنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اگر شروعات کرنے میں دن منحوس ہو تو وہ آپ کو نقصان دے گا، مگر یہ مہینہ اس معاملے کے اندر پورا مہینہ ہی ٹھیک جا رہا ہے، تو کسی بھی دن آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کو اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کے جو ہیں پیپر وہ اپروو ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے ارینج میرجز کے بارے میں بتا دوں
स्टार से ताल्लुक़ रखने वाली जो बच्चियां हैं उनका और बच्चों का दोनों का एक जैसा तकरीबन आया है। रिश्ता होने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 30 से 35% लोगों के हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। मगर यहाँ एक रेशो बता दूँ, छोटी उम्र यानी कि 22 साल से कम उम्र के लोगों के, मर्द हजरात का 24 से कम उम्र के लोगों के रिश्ता होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनकी उम्रें इनसे ज़्यादा हो चुकी हैं उन पर ऑलरेडी पहले से ही जादू का या नज़र बद का ज़्यादातर लोगों पर मसाइल होंगे, उनका इस वजह से मसला होगा। और बाकियों का सितारों की बंदिश की वजह से भी ये प्रॉब्लम आएगी कि उनके रिश्ते ज़्यादातर के नहीं होंगे। ठीक है जी, सितारों के हिसाब से भी बता रहा हूँ। और आपके स्टार में ज़्यादातर जिनकी उम्रें इससे ज़्यादा हो चुकी हैं उनको ये मामला ज़्यादातर को हैं, इसलिए उनके रिश्ते नहीं हो रहे और आगे भी नहीं होंगे, ज़्यादा को परेशानी ही मिलेगी। अब जो मोहब्बत करने वाले हैं उनके बारे में बता दूं, उनकी भी उम्रें यही, लड़कियों की 22 साल से कम और लड़कों की 24-25 साल से कम। ठीक है, ये उनके बारे में बता रहा हूँ कि आपके अगर सोलमेट का स्टार जो है वो जेमिनी, लड़कियों का बता रहा हूँ, जेमिनी, कैंसर और स्कॉर्पियो है तो इंशाल्लाह रिश्ता ज़रूर होगा। अगर इनके अलावा कोई है तो फिर यहाँ तो नहीं होगा, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जिन लड़कों का, अब लड़कों के बारे में बता रहा हूँ, अगर लड़कों के आपका ऑपोजिट जो आपकी महबूबा, अगर उसका स्टार जो है लियो है, कैंसर है और टॉरस है, ठीक है, तो फिर आपका रिश्ता होने के चांसेस हैं। अगर इन तीनों में से कोई और है तो फिर रिश्ता होने के चांसेस आपके ना होने के बराबर हैं या बहुत कम हैं जी। ठीक है, बात करते हैं जो मेरे बच्चे बच्चियां बे औलाद हैं उनके बारे में। आपके लिए महीना जो है, इस महीने का पहला और दूसरा हफ्ता बहुत अच्छा है। आपको चाहिए कि इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी मेडिसिन लें। आपको आने वाले अगले महीने के अंदर इसका बड़ा ही आला रिज़ल्ट मिलेगा। ख़ास तौर पर जिन बच्चियों को पानी की थैलियों का मसला है, ठीक है, या अंडों की कमी की प्रॉब्लम है, अंडे कमज़ोर हैं, उनके लिए ये बहुत आला महीना है। आपको अपनी मेडिसिन फौरी तौर पर स्टार्ट करनी चाहिए। अगर किसी बच्ची को अठरा का मसला है तो ये उसके बारे में नहीं बता रहा, यानी कि बच्चे का हमल होना, हमल का ज़ाया हो जाना या फिर बच्चों का होकर मर जाना। ठीक है, उसके बाद जिस्म पर दबाव, नील के निशान, डरना, त्रिबकना, ये निशानियाँ आम निशानियाँ बता रहा हूँ जो कि 18 की हैं। अगर ये मामलात हैं तो फिर 18 का मसला है, उसका तो आप अलहदा से इलाज करवाएंगे, उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है जी। अब बात करते हैं आपके सदक़े वगैरह की। 12 के 12 स्टार्स की जो नौयत है पूरे महीने की और बाकी सबको मिलाने के बाद आपके लिए जो सबसे बेहतरीन सदका बन रहा है, मर्द हजरात के लिए पहले बताने लगा हूँ, हर सोमवार वाले दिन अगर तो कोशिश तो ये कीजिएगा कि अगर महीना शुरू होने से पहले ही मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये सदका आप महीना शुरू होने से पहले जो सोमवार आ जाए आपने उस पर ही दे देना है। ठीक है, यानी जैसे कि अप्रैल की 27 तारीख को जो सोमवार आ रहा है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। तो कोशिश करें कि इस सदक़े को अप्रैल की 27 से ही शुरू करें, ज़्यादा बेहतर ये है। अगर अप्रैल की 27 को ना कर सकें तो फिर मई का जो सोमवार आएगा पहला, उससे शुरू कर लें। ठीक है, तो फिर अब आपने करना क्या है, आपने 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी है, ये मैंने उसकी तस्वीर लगा दी। 1 मुट्ठी आपने बारीक चावल लेने हैं, टोटा होता है वो बारीक टोटा जो होता है, ठीक है, जो जानवरों वाला है वो लेना है। 1 मुट्ठी आपने भर के वो ले लेना है। और 1 ही मुट्ठी आपने नॉर्मल सी, ये 2 चीज़ें आपने भर भर के लेनी है। और तीसरी जो चीज़ है यानी चीनी 1 मुट्ठी आपने लेनी है, वो नॉर्मल लेनी है, वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, वो आपने डाल के अच्छे से हाथ मार लेना है। ये आपने सुबह फजर की नमाज के बाद करना है, 1 दिन पहले ही ला के रख लें घर में। अच्छा, करने के बाद आपने कब्रिस्तान चले जाना है। कब्रिस्तान जाकर आपने 1 मुट्ठी हाथ में पकड़नी और दीवार पर या अंदर कब्रों के ऊपर फेंक देनी है। और जब फेंकनी है तो कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में दे रहा हूँ, सदका नहीं कहना, याद रखिएगा। ये कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में दे रहा हूँ। ये आपने हर सोमवार वाले दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर रहेगा। टोटल आपके 5 सोमवार हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है सदका होगा, मगर इस लफ्ज़ को सदका आप लोगों ने नहीं कहना जी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अगर मुनासिब हो सके तो 2 रकत नमाज नफिल, इशा की 17 अरकात के बाद 2 रकत नमाज नफिल, नियत बता रहा हूँ, गौर से सुन लें।
2 रकत नमाज नफिल बंदगी अल्लाह ताला की हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। और 2 रकत नमाज नफिल शुक्राना बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। ये 2 और 2 4 नवाफिल अदा करें इशा की नमाज के बाद, और इसकी पूरा महीना रूटीन रखें। यह आपके लिए सबसे बेहतरीन पढ़ाई और सदका होगा। बाकी जो मेरी रोज़ाना की वीडियो अपलोड होती है, आज का दिन कैसा रहेगा, उसके अंदर मैं जो पढ़ाई देता हूँ वो करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखिएगा एक ही महीने के अंदर कैसा अरूज इंशाल्लाह आपके ऊपर आता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरी बहनों माओं ने कौन सा सदका देना है। पढ़ाई जो मैंने बताई है आपने वही करनी है, यानी कि नवाफिल वगैरह आपने पढ़ने हैं। उसके बाद रोज़ाना की जो पढ़ाई बताता हूँ वो आपने करनी है। पर आपने सदका जो है वो ये नहीं देना। आपने काले रंग का कोई सूट लेना है, उसके अंदर फूल बूटे हों, जो मर्ज़ी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसमें वाज़ा रंग जो है वो स्याह यानी काला हो। या अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं तो कोई दुपट्टा ले लें, ठीक है। वो लेकर आपने अपने सर से 7 बार वार कर किसी गरीब को देना है। कोशिश कीजिएगा महीना शुरू करने से पहले ही ये अदा कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, वरना महीने के शुरू करने के बाद भी आप दे सकते हैं। उसका रिज़ल्ट आपको इस महीने में भी मिलेगा और महीने के बाद में भी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सदका जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है बार बार, यानी जो मेरी माएँ बहनें ये लेंगी बेचारी, वो सर पे लेती रहेंगी जब तक वो फट कर उनके सर से उतर ना जाए, या फिर वो इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करके फेंक ना दें, तब तक ये आपका सदका चलेगा, ठीक है। तो इसके असरात आपको बाद में भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो ये आपने देना है जी। बाकी इंशाल्लाह मेरा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करम करेगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सब की परेशानियां दूर फरमाए। मेरा रब्बुल इज़्ज़त पंजतन पाक के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े आपकी हर तरह से मदद फरमाए। आपके गुनाहों की वजह से अगर कोई रुकावट बंदिश आ रही है तो मेरा रब उसकी माफ़ी फ़रमाए, आपके वक्त आपके रास्ते खोले। अब मेरा रब आपके कारोबार के अंदर, आपके घरेलू मामलात के अंदर, मेरी जो बच्चियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते मेरा रब्बुल इज़्ज़त सदका फ़ातिमा ज़हरा के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के उनके रिश्ते करें। मेरे रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियां दूर फरमाएं। जिन मेरी बहनों के घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मेरा मालिक हज़रत अली करमल्लाहु वजहो, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर के सुकून की तुफ़ैल, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत की तुफ़ैल करके उनके घरों में सुकून और मोहब्बत पैदा कर दे। मेरा रब्बुल इज़्ज़त आप अगर कोई बच्चियां ऐसी हरकत कर रही हैं जिनकी वजह से उनको पता ही नहीं कि उनके घर में लड़ाई है, मेरा मालिक उनको अक्ल दे, समझ बूझ दे कि वो अपने घर की लड़ाइयों को ख़त्म कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।